Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important concepts related to sociology optional dear friend and the same series of lecture as we discussed in the last class from this particular book of Harlumbus, that sociological theory, that is one very important chapter of this book. Last class में हमने आपके साथ ये chapter start किया था and in last class dear friend we talked about one important perspective, one important theoretical perspective, that is functionalist perspective. And in today's class dear friend we are going to start with another important perspective, that is conflict perspective. और देखिए ये जो conflict perspective है from this particular book we will try to understand. देखिए otherwise on conflict perspective we can discuss in much detail, but for the time being we are covering this book, so whatever is mentioned in this book that we are trying to understand, that I am trying to explain you under this conflict perspective as mentioned in this book of Harlumbus dear friend. दो लेक्चर में हम इस conflict perspective को complete करेंगे. Today is going to be the first lecture. So let's start with today's lecture dear friend, and before starting this lecture there is some basic information about me dear friend. My name is Pankaj Shukla and I have been teaching this sociology optional since last more than 10 years dear friend. और sociology optional को लेकर, social issues को लेकर, society related कोई issue है उसको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर डियर फ्रेंड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हैज़ बीन मेंशन इन दिस पर्टिकुलर बुक ऑफ हार्लुम्बस. सो ये लास्ट क्लास में हमने आपके साथ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बात की एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव व्हाट वी डिस्कस, हमने डिस्कस किया दैट फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज a macro sociological perspective that tries to explain functioning of society in terms of some grand narrative in a similar manner dear friend. Conflict perspective is also a macro sociological perspective that tries to explain functioning of society in terms of some grand narrative, some broad generalization. So कुछ broad generalization के term में ये सोसाइटी की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. सो चैप्टर नंबर 15 दैट डील्स विद सोशियोलॉजिकल थ्योरी दैट वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, एंड विद इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी देयर इज वन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नोन एज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस पर्टिकुलर क्लास डियर फ्रेंड कि ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है क्या. तो देखिए फंक्शनलिस्ट दे वर सेइंग कि सोसाइटी इज लाइक एन इंटीग्रेटेड होल made up of number of interconnected and interdependent part. Each such part they are contributing some function and that's why society is able to function as a whole. But conflict scholar क्या बोल रहे हैं? देखिए conflict scholar का ये कहना है कि society, in any society dear friend, there are different groups and these groups dear friend, these groups they have diverse interest. हर ये जो ग्रुप हैं इनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं और कई बार ऐसा हो सकता है दोस्तों दैट इंटरेस्ट ऑफ वन ग्रुप इट गोज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर ग्रुप, इंटरेस्ट ऑफ वन कम्युनिटी इट गोज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी. तो सोसाइटी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय कंसेंसस, सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय दीज डाइवर्स ग्रुप्स एंड दीज डाइवर्स ग्रुप्स दे हैव वेरीड इंटरेस्ट एंड वेरी ऑफन इंटरेस्ट ऑफ वन ग्रुप इट मे गो अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ अनदर ग्रुप. ये बात समझ पा रहे हैं एज पर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स का कहना है कि देखिए जो सोशल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सोसाइटी का वो ऐसा होता है कि इट ऑलवेज बेनिफिट सम पीपल, इट ऑलवेज बेनिफिट वन पर्टिकुलर ग्रुप एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल. सो सोसाइटी में इस तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, एथनिसिटी के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर. और ऐसा हो सकता है कि मेंबर बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप they are getting advantages, but member belonging to other ethnic groups they are feeling deprived, excluded, marginalized. सोसाइटी में जो भी रिवॉर्ड्स हैं लाइक वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज, हो सकता है कि मेन दे हैव बेटर एक्सेस टू दीज थिंग्स एज कंपेयर टू वुमेन. तो सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि इट ऑलवेज बेनिफिट सम पीपल एट द कॉस्ट ऑफ अदर एज पर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. ये बात समझ पा रहे हैं. तो सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप हैं जिनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं और सोशल अरेंजमेंट इस तरह का है कि इट ऑलवेज बेनिफिट्स फ्यू पीपल एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल. और देखिए सिंस ये अलग अलग ग्रुप एज पर दिस बुक
since these different groups they pursue their separate interests, so society is not characterized by consensus, harmony or equilibrium as argued by functionalists. Rather, society is characterized by a kind of flux. Society is characterized by a kind of competition for resources among these groups. ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, जो इसेंशियल रिसोर्सेज हैं लाइक वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, इनको लेकर compete कर रहे हैं. तो देखिए सोसाइटी एज अगेंस्ट फंक्शनलिस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनस्टेबिलिटी. सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी है. वाई? बिकॉज देयर एग्जिस्ट clash of interest among these groups or there exists conflict among these groups because किसी ग्रुप के पास ज़्यादा है और किसी ग्रुप के पास कम है. सो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है और इस इनइक्वालिटी की वजह से दोस्तों सोसाइटी में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या क्लैश ऑफ कन्फ्लिक्ट है अकॉर्डिंग टू कन्फ्लिक्ट स्कॉलर. सो जहाँ एक और ऑन वाइल फंक्शनलिस्ट दे वर एम्फेसाइजिंग ऑन कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, ऑर्डर, हार्मनी, कंसेंसस इन सोसाइटी, वही दूसरी तरफ दोस्तों जो कन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स हैं दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, सबऑर्डिनेशन, डोमिनेशन, क्लैश, these things dear friend. So as against functionalists, conflict perspective it provides a radical alternative to look at society. सोसाइटी को देखने का ये एक रेडिकली अल्टरनेटिव ओपिनियन है, रेडिकली अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है एज अगेंस्ट फंक्शनलिस्ट. फंक्शनलिस्ट बोल रहे थे सब चंगा है, एवरीथिंग इज फाइन, सोसाइटी इज रनिंग स्मूथली. ये क्या कह रहे हैं? सोसाइटी इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स. बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी देयर विल बी कन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट विल लीड टू चेंज. और सोसाइटी कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ सच इनइक्वालिटी एंड कन्फ्लिक्ट चेंज की तरफ जा रही है. There is no such consensus or order. There is conflict and disorder in society. So that is the basic difference between functionalists on one side and conflict scholar on other side. अब देखिए ये जो conflict perspective है दोस्तों, it traces its origin from the writings of one famous German economist, philosopher and sociologist Karl Marx. जिस तरह से हमने functionalist perspective में अलग अलग स्कॉलर के बारे में बात की, in a similar manner dear friend, conflict perspective as a theoretical framework, it traces its origin from the writings of a famous German philosopher, a famous German sociologist and economist, Karl Marx. Marx, he wrote extensively on various topics. Marx as a scholar, he never tried to project himself as a sociologist. Marx ने कभी भी खुद को सोशोलॉजिस्ट की तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं की. ये सोसाइटी के बारे में अपने जनरल आइडियाज़ दे रहे थे. जिस सोसाइटी में ये रह रहे थे इन जर्मन सोसाइटी ऑफ 19th सेंचुरी फ्रॉम 1812 टिल 1882-83, ये इनका टाइम फ्रेम है. देखिए उस सोसाइटी में जो कंडीशंस थे, वॉट एवर कंडीशंस वर एग्जिस्टिंग इन जर्मन सोसाइटी एट दैट टाइम, इससे हैप्पी नहीं है कौन? मार्क्स. इसलिए वो कुछ अपने आइडियाज़ दे रहे हैं कि कैसे एक बेटर सोसाइटी बनाई जा सके, हाउ टू क्रिएट मोर जस्ट, फेयर, रीजनेबल सोसाइटी. और इस वजह से कि वो जनरल राइटिंग्स दे रहे हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ इनकंसिस्टेंसी, एम्बिग्विटी इन हिज राइटिंग्स, बट फ्रॉम हिज राइटिंग्स a new perspective came into existence in sociology known as conflict perspective. देखते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं दोस्तों. कार्ल मार्क्स ये बोल रहे हैं कि देखिए हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द प्रोड्यूसर एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ दिस सोसाइटी. हम क्या हैं? प्रोड्यूसर एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ दिस सोसाइटी है. इनका कहना है कि द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट वॉज एक्ट ऑफ प्रोडक्शन. ह्यूमन बीइंग्स ने खुद को सर्वाइव रखने के लिए फूड, क्लोथ, शेल्टर, इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. सो अनलाइक अदर एनिमल्स लाइक काऊ, फॉर एग्जाम्पल काऊ और एनी अदर एनिमल, देखिए दे कैन ईट ग्रास बट दे कैन नॉट ग्रो ग्रास. बट ह्यूमन बीइंग्स दे आर क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग. मार्क्स क्या बोले कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग हैं. इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ वी इंडल्ज इन टू एक्ट ऑफ प्रोडक्शन. हमने सबसे पहला जो काम किया that was act of production, food, shelter, cloth, anything dear friend. So according to Marx, man is
प्रोड्यूसर एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। प्रोड्यूसर क्यों? क्योंकि आप गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यू आर द प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोड्यूसर ऑफ सोसाइटी। और देखिए, वी ह्यूमन बींग्स व्हेन वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, दैट एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो एक्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये सोशल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसमें हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सो मार्क्स का कहना है कि मैन इज अ प्रोड्यूसर एंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दे इंडल्ज इनटू सम सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। वो कुछ सोशल रिलेशंस में इंडल्ज होते हैं, दूसरों के साथ मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। और कुछ टर्म्स यहाँ पर मार्क्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि बुक में ये टर्म्स बिगिनिंग में नहीं बताए गए, बट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट मार्क्स इज इंट्रोड्यूसिंग, और ये टर्म्स क्या है? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, आगे जाकर ये टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे, बट बुक में बिगिनिंग में इन्हें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, डियर फ्रेंड, सिंपली ये वो चीज़ें हैं, दीज आर दोज थिंग्स यूजिंग विच you are doing act of production. Forces of production are those things like money, like land, like machinery, like tools, like technique, जिनका यूज करके आप प्रोडक्शन करेंगे, प्लस लेबर पावर। सो मनी, मशीनरी, टूल्स, टेक्निक, टेक्नोलॉजी प्लस लेबर पावर, इनका यूज करके आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। इन्हें कॉम्बिनेशन में क्या बोला जा रहा है? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, आपके पास मनी है, आपके पास मशीन है, आपके पास टेक्निक है, आपके पास टूल्स हैं। प्रोडक्शन विल नॉट स्टार्ट अनलेस अनटिल यू इन्वॉल्व ह्यूमन लेबर। सो मार्क्स सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं ह्यूमन लेबर को, और मार्क्स से बोलते हैं कि एक्सेप्ट ह्यूमन लेबर, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में जो चीज़ें हैं, मनी, लैंड, कैपिटल, टूल्स, टेक्निक, दीज थिंग्स आर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और जब इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व कर देते हैं लेबर पावर को, देन इट बिकम्स अ फोर्स। तभी क्या बन जाता है? फोर्स। तो देन इट बिकम्स फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। सो मीन्स, मेथड विथ विच यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज along with human labor, that constitute forces of production. Forces of production consist of means of production plus labor power. क्या है? means of production है like physical resources, tools, machines, technology plus human labor. इन्हें कंबाइन जब आप करते हैं तब ये फोर्स बनता है, यू कॉल इट फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। बट जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, देन यू इंडल्ज इनटू ए रिलेशंस। और देखिए, दो तरह के रिलेशंस होते हैं। एक तो रिलेशन ये होता है कि जो रिलेशन होता है कि जो इन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहा होता है और जो इन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहा होता है। लाइक अगर आप फ्यूडल सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल लैंड। इस एग्रीकल्चरल लैंड को ओन कर रहे हैं फ्यूडल लैंडलॉर्ड, और इन एग्रीकल्चरल लैंड पर कल्टीवेशन कर रहे हैं पीजेंट और सर्फ। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर ऑफ दोज फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन and non-owner, that is those cultivators or peasant who are working on those forces of production. That is one set of relation between owner and non-owner. Second relation is with your colleague. जब आप कल्टीवेशन कर रहे हैं फ्यूडल सोसाइटी में एज ए पीजेंट, एज ए कल्टीवेटर, तो आपके साथ और भी लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। दे आर लोग, दीज पीपल आर योर ब्रदर्स और दीज आर योर कॉमरेड्स, जिनके साथ आप मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दीज कॉन्स्टिट्यूट relations of production. So relations of productions, they are of two types. One is relationship in terms of owner and non-owner, and second that you are maintaining with your fellow worker. So that is forces of production and that is relations of production. बुक में इसे बिगिनिंग में नहीं बताया गया है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसे आगे जाकर आप इसे समझ पाएँ आसानी से। दोस्तों, मार्क्स ये बोल रहे हैं जस्ट लाइक फंक्शनलिस्ट, डियर फ्रेंड। फंक्शनलिस्ट क्या बोल रहे थे कि सोसाइटी में अलग अलग पार्ट्स हैं, दीज पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। उसी तरह से मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि सोसाइटी इज लाइक अ बिल्डिंग। सोसाइटी क्या है? एक बिल्डिंग की तरह से। जिस तरह से देखिए बिल्डिंग का क्या होता है? एक बेस होता है, उसी तरह से सोसाइटी का भी एक बेस है, जिसको मार्क्स क्या बोल रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डील्स विद इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी। किस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी। और इसके लिए वो आगे जाकर एक टर्म यूज करेंगे
मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्या यूज करेंगे? मोड ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉम्बिनेशन है, फॉर दैट ही इज यूजिंग ए टर्म नोन एज मोड ऑफ प्रोडक्शन। सो दैट मोड ऑफ प्रोडक्शन शोज कि हाउ थिंग्स आर बीइंग प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, दैट इज बेस। मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट बेस ऑफ सोसाइटी एंड एवरीथिंग एल्स, political system, educational system, cultural system, every other things dear friend, it constitute superstructure of society. So there is a base and there is a superstructure according to Karl Marx. और देखिए मार्क्स कर रहे हैं कि जो बेस होता है ये डिटरमिन करता है सुपरस्ट्रक्चर। सो बेस डिटरमिन सुपरस्ट्रक्चर। जिस तरह का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा सोसाइटी में, सोसाइटी का नेचर उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिसाइड होगा। ये कुछ बातें मार्क्स बोल रहे हैं कि सोसाइटी में ये जो बेस और जो सुपरस्ट्रक्चर है ये इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। एंड इफ देयर विल बी चेंज, अगर चेंज होगा किसमें, बेस में, सो देयर विल बी चेंज इन व्हाट, सुपरस्ट्रक्चर। सो व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन बेस, दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर विल बी चेंज इन अपर पार्ट, दैट इज सुपरस्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। बट मार्क्स का कहना है कि ये जो चेंज होगा, अनलाइक फंक्शनलिस्ट, फंक्शनलिस्ट बोले थे कि चेंज विल बी ऑर्डर्ड, चेंज विल बी ग्रेजुअल, चेंज विल बी सिक्वेंशियल। बट ये कह रहे हैं कि ये जो चेंज होगा, दैट चेंज विल बी ड्यू टू सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस। इनका कहना है कि जो इकोनॉमिक बेस है इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे और ये कॉन्ट्राडिक्शंस इमर्ज होंगे बिटवीन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इन कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से देयर विल बी चेंज इन ओवरऑल सोसाइटी। दैट इज द बेसिक आर्गुमेंट ऑफ मार्क्स। कैसे ये चेंज होगा, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए मार्क्स ने एक मेथोडोलॉजिकल टूल यूज किया है, दैट इज आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। सो यूजिंग डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, मार्क्स ये बता रहे हैं कि हाउ सोसाइटी फ्रॉम वन स्टेज इट चेंजेस टू अनदर स्टेज। और देखिए ये जो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का आइडिया मार्क्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी जो इंस्पिरेशन आ रही है उन्हें आ रही है फ्रॉम फेमस जर्मन स्कॉलर हीगल। हीगल से उनको इसकी इंस्पिरेशन आ रही है। तो डायलेक्टिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिट थिंग्स, प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिट थिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्टिक। और मार्क्स कहना है कि जब भी चेंज होगा, दैट चेंज विल हैपन बिकॉज ऑफ टेंशंस दैट विल अराइज बिटवीन टू अपोजिट और इनकैपेटिबल फोर्सेस। दो अपोजिट और इनकैपेटिबल फोर्सेस के बीच में टेंशन होगा, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या होगा, चेंज होगा। एंड फाइनल कोलिजन विल लीड टू हायर लेवल और नेक्स्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। कैसे होगा, कब होगा, ये हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म ही इज यूजिंग एज ए मेथोडोलॉजिकल टूल टू एक्सप्लेन हाउ चेंज अनफोल्ड्स इन सोसाइटी। और डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की जो इंस्पिरेशन आई है मार्क्स को, आई है फ्रॉम ए फेमस जर्मन फिलोसफर हीगल, हु इज रिगार्डेड एज father of philosophy in earlier Prussia. When Marx was studying philosophy, Hegel was very influential. और देखिए जो हीगल है ये एक फिलोसफर थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का। मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। बट वो इंस्पायर्ड है किससे, हीगल से। हीगल का आइडिया क्या था, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। हीगल ये बोल रहे थे कि देखिए ये जो वर्ड है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी इज नथिंग, सोसाइटी इज एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ आइडियाज। आप ये जो बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं, आप आज ये जो सोसाइटी देखते हैं, जो बुलेट ट्रेन देखते हैं, जो भी देखते हैं दोस्तों, अगर हीगल के टर्म में बोलें तो वॉट एवर वी सी इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो भी चीज़ें हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखते हैं, दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंड, प्रोडक्ट ऑफ आवर आइडियाज। पहले आइडिया हमारे माइंड में आता है, उस आइडिया को लेकर हम कुछ वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, तब इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को हम क्रिएट कर पाते हैं। ये लैपटॉप, ये कैमरा, ये बोर्ड, ये सब कुछ पहले आपके माइंड में आइडिया के फॉर्म में आया होगा, और जब इस आइडियाज़ पर आपने वर्क किया तब जाकर आप अपना सोशल वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। सो हीगल वाज सेइंग दैट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल सोशल वर्ल्ड दैट यू आर एबल टू विजुअलाइज, दैट इज जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडियाज़। ये आइडियाज़ का मैनिफेस्टेशन है। सो वर्ल्ड और सोसाइटी इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट एंड आइडियाज़। और देखिए ये जो आइडियाज़ हैं अकॉर्डिंग टू हीगल, ये स्टैटिक नहीं है। ये जो आइडियाज़ हैं ये इवॉल्व होते हैं। पहले आपके माइंड में कोई आइडिया आता है जिसके लिए एक टर्म यूज़ कर रहे हैं थीसिस,
देन उसी समय उसका एक अपोजिट आइडिया आता है नोन एज काउंटर एंटीथीसिस। थीसिस और एंटीथीसिस के बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है, देन एक नया आइडिया इमर्ज होता है जिसको बोला जा रहा है न्यू थीसिस और सिंथेसिस। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूअसली आइडियाज क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। एंड सिंस सोसाइटी इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ आइडियाज, सो व्हेन आइडियाज दे इवॉल्व, सोसाइटी ऑल्सो इवॉल्व। ऐसा कहना था किसका, हीगल का। तो हीगल वॉज एक्सप्लेनिंग डायलेक्टिकल कन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम्पैटिबल आइडियाज। बट मार्क्स कह रहे हैं कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म not in terms of incompatible ideas but in terms of incompatible material conditions. Hegel is explaining evolution of societies in terms of evolution of ideas. Marx is explaining evolution of societies in terms of evolution of material condition. Hegel कह रहे थे कि आइडियाज इवॉल्व होते हैं और उसके थ्रू सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। मार्क्स बोल रहे हैं मेटेरियल कंडीशंस इवॉल्व होती हैं और उस तरह से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। तो मार्क्स एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। मार्क्स ने यूरोपियन सोसाइटी के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टेजेस। सर्टेन स्टेजेस बोले कि जो अर्लीस्ट मटेरियल स्टेज थी ह्यूमन बीइंग की, दैट वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ये एक अर्लीस्ट मटेरियल स्टेज थी ह्यूमन काइंड की। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में जो मटेरियल कंडीशन थी उनसे नेक्स्ट स्टेज जो आई दैट वाज स्लेव सोसाइटी। स्लेव सोसाइटी में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस इमर्ज हुए, देन आया फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी से कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस इमर्ज हुए, देन आया कैपिटलिस्ट सोसाइटी इन विच मार्क्स वाज लिविंग। सो हीगल वाज एक्सप्लेनिंग इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज। मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको बोला जा रहा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन मटेरियल कंडीशंस। और ये जो चेंजेस इन मटेरियल कंडीशंस हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जिस्टिंग मटेरियल कंडीशन में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और इन कॉन्ट्राडिक्शन का जब रिजोल्यूशन होगा तो नई मटेरियल स्टेज आ जाएगी। सो आप प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्लेव सोसाइटी में जा रहे हैं, फ्यूडल सोसाइटी में जा रहे हैं और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं ये हम आपके साथ समझने की कोशिश करते हैं। मार्क्स कह रहे हैं कि देखिए जो फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट था दैट वाज प्रोडक्शन। हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, दे आर creative human being, they are creative producer. So for your food, for your shelter, for your cloth, you indulge into act of production. जहाँ पर हमने दो चीज़ों की बात की, forces of production and relations of production. तो कह रहे हैं देखिए जो प्रोडक्शन है according to Marx, it is a collective enterprise, it is a social enterprise, and the way you organize that production process in any stage of society that determines nature of that society. हमने आपके साथ डिस्कस किया स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये जो अलग अलग स्टेजेस थी इन इवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, हर पर्टिकुलर स्टेज में किस तरह से आपने अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन को या इकोनॉमिक प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया था, दैट यूज टू डिटर्मिन ओवरऑल शेप ऑफ सोसाइटी। सो अगर फ्यूडल सोसाइटी थी जहाँ पर लोग खेतों में काम करते थे और उससे प्रोडक्शन होता था, तो जो फैमिलीज होती थी वो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी क्योंकि आपको चीप लेबर मिल जाता था। जब आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाएंगे वर्क फैक्ट्रीज में होगा, मशीन की मदद से होगा। इन फैक्ट्रीज में चूंकि वर्क मशीन की मदद से हो रहा है तो अब हस्बैंड एंड वाइफ बोथ दे कैन वर्क। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज होगी, ईगैलिटेरियन जेंडर रोल्स होंगे, स्कूल्स होंगे क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं जॉब पर, सो देयर विल बी डे केयर, देयर विल बी क्रेच लाइक फैसिलिटी। सो सोसाइटी का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि उस सोसाइटी में प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ कैसा है। बेस डिटर्मिन्स ओवरऑल सोसाइटी डियर फ्रेंड। मार्क्स कहना है देखिए देयर विल बी सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस इन बेस, सच कॉन्ट्राडिक्शन इन बेस दैट विल लीड टू चेंज इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, and when there will be change in economic infrastructure, superstructure will accordingly change. Superstructure will accordingly change because base determines superstructure. हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैंने आपको शुरू में बोला था देखिए आइडियली इन लेक्चर्स की जो लेंथ है मैं हाफ एन आवर रखूँगा, तो हो सकता है कि आपको लगे कि चीज़ें फास्ट जा रही हैं, एक बार आप इसे रिवाइज करके भी देख सकते हैं। तो हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया दोस्तों कि बेस डिटर्मिन्स व्हाट, सुपरस्ट्रक्चर।
सो इफ देयर विल बी एनी कॉन्ट्राडिक्शन, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे किसमें, बेस में, सो बेस में अगर चेंज आएगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर चेंज आएगा, तो अकॉर्डिंगली देयर विल बी चेंज इन सुपरस्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम. It will change in order to legitimize, in order to satisfy change in base, dear friend. इसे एक्सप्लेन करने के लिए मार्क्स ये बोले कि देखिए ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं इमर्ज कैसे होते हैं. इनका कहना है कि जो सबसे अर्लीस्ट स्टेज थी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, दैट वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म. जब ह्यूमन बीइंग्स हंटर और गैदरर की तरफ से रहते थे और नेचर पर डिपेंडेंट थे. वॉट एवर नेचर यूज टू सप्लाई यू, उसी पर आप डिपेंडेंट थे. तो जब आप नेचर पर डिपेंडेंट थे तो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे या आपका जो प्रोडक्टिव लेबर था, एवरीथिंग वॉज कम्युनली ओन्ड. एवरीथिंग वॉज कम्युनली ओन्ड. हर चीज़ क्या थी, कम्युनली ओन्ड थी, किसी की कोई प्राइवेट ऑनरशिप नहीं थी दोस्तों. बट जब आप प्रिमिटिव कम्युनिज्म से एंशिएंट सोसाइटी में गए, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज हुआ. आपने कुछ प्रोड्यूस किया जिसको आपने क्लेम किया, इट इज योर्स, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. सम पीपल दे प्रोड्यूस मोर, सम पीपल दे प्रोड्यूस लेस. सो इनइक्वालिटी इमर्ज. क्या इमर्ज हुई, इनइक्वालिटी इमर्ज हुई. सो प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट रिलेट टू कॉन्ट्राडिक्शंस इन सोसाइटी. इसकी वजह से सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, और जब ये कॉन्ट्राडिक्शंस इमर्ज होंगे देन सोसाइटी विल मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज. Some people who controlled these means of production, they started controlling, they started dominating productive labor of majority. So slave society में जो dominant group था वो था masters का, और जो subordinate group था वो slave का था. feudal society में जो dominant group है that is of landlords, और जो subordinate group है वो है serf का. capitalist society में जो dominant group है वो capitalist का है, वो फैक्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं, मशीनरी को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो सबऑर्डिनेट ग्रुप है वो वर्कर का है. तो हर स्टेज में सोसाइटी में एक माइनॉरिटी ग्रुप होगा दोस्तों, जो डोमिनेंट ग्रुप होगा, जो कंट्रोल करेगा, कमांड करेगा किसे, सबऑर्डिनेट ग्रुप को, जो मेजॉरिटी में होगा. इसके प्रोडक्टिव लेबर को आप कंट्रोल करेंगे. तो मास्टर्स कंट्रोल करते थे स्लेव्स को, फ्यूडल लॉर्ड्स कंट्रोल करते थे पीजेंट कल्टिवेटर्स को, और कैपिटलिस्ट कंट्रोल करते हैं वर्कर्स को, इंडस्ट्रियल वर्कर को. मार्क्स का कहना है, एक फेमस स्टेटमेंट, इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटर्मिन्स देयर बीइंग, बट देयर सोशल बीइंग दैट डिटर्मिन्स द कॉन्शियसनेस. कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी का जो कल्चरल सिस्टम है, सोसाइटी की जो वैल्यू सिस्टम है, वो आपके एग्जिस्टेंस को डिटर्मिन नहीं करता. जिस तरह से प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी का, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी का, मटेरियल लाइफ का प्रोडक्शन आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, ये डिटर्मिन करता है कि किस तरह की आइडियोलॉजी सोसाइटी में डोमिनेट करेगी, किस तरह के वैल्यूज़ और नॉर्म्स डोमिनेट करेंगे. ये मार्क्स का एक फेमस स्टेटमेंट है. मार्क्स कहते हैं कि देखिए ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ योर पॉलिटिकल सिस्टम, सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ योर लीगल सिस्टम, सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ योर एजुकेशनल सिस्टम, योर बिलीफ, योर वैल्यूज़. ये सब सुपर स्ट्रक्चर में है. बेस में क्या है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोले, कैसे आपकी सोसाइटी में प्रोडक्शन प्रोसेस ऑर्गेनाइज है. ये कह रहे हैं कि जो रियल नेचर है, जो रियल रिलेशनशिप है बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, जो रियल रिलेशनशिप है बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्फ, जो रियल रिलेशनशिप है बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, दैट रियल रिलेशनशिप इज हाईली एक्सप्लॉयटेटिव. बट ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, आप पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू, आप लीगल सिस्टम के थ्रू, वैल्यूज़ और नॉर्म्स के थ्रू ऐसा दिखाते हैं कि ये जो रिलेशन है बिटवीन ऑनर एंड नॉन ऑनर का, ये नॉर्मल है और नेचुरल है. सो आपका रिलीजन, आपका लॉ, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका एजुकेशनल सिस्टम, आपकी वैल्यूज़, आपके नॉर्म्स, ये सब लेजिटिमाइज करते हैं द काइंड ऑफ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन बेस. और इससे एक फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है. फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बट आपको लग रहा है कि नहीं सही है, एकदम सब कुछ सही है. जैसे अगर आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें, या द टाइम पिंग व्हेन मार्क्स वाज लिविंग, सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द टाइम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता है जो फ्रीडम की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है. बट
कैपिटलिस्ट के विज़ाविज़ जो वर्कर होता है, क्या वो ये फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकता है कि जिस कैपिटलिस्ट के यहाँ वो काम करना चाहे करे या ना करे, क्योंकि जो वर्क है वो लेस है, अनएम्प्लॉयड पीपल क्या हैं, अबंडेंस में। सो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम या जो वैल्यू सिस्टम है, ये लेजिटिमाइज करता है किसे, बेस को। इस वजह से भले ही ये रिलेशनशिप एक्सप्लॉयटेटिव है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस, बट आपको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है, आपको लगता है नेचुरल है। इसको मार्क्स बोल रहे हैं कि ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। क्या है? फॉल्स कॉन्शियसनेस में देखिए, फॉल्स कॉन्शियसनेस की वजह से क्या होता है, ये जो सबॉर्डिनेट क्लास होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है, बट तो भी उसे लगता है कि चीज़ें सब कुछ सही हैं, नॉर्मल है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम इसको लेजिटिमाइज कर रहा होता है। तो आपको रियल सिचुएशन का आइडिया नहीं होता। ऑब्जेक्टिवली आप एग्जिस्ट करते हैं, बट आपको सब्जेक्टिव अवेयरनेस नहीं है किसकी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की, कि किस तरह से आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह से आपका डोमिनेशन हो रहा है, इसका आपको आइडिया नहीं होता। इसी स्टेज में दोस्तों मार्क्स एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, फॉल्स कॉन्शियसनेस का। फॉल्स कॉन्शियसनेस मीन्स डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ रियलिटी। जिस सिचुएशन में आप हैं, रियल पिक्चर का आपको आइडिया नहीं है दोस्तों, रियल पिक्चर का आइडिया नहीं है। बट ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, अगर ये बढ़ते रहेंगे, सो देयर विल बी टेंशंस इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेंशन देयर विल बी ए कन्फ्लिक्ट। रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट विल लीड टू चेंज। इसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आएगा, ऐसा कहना है मार्क्स का। कैसे आएगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, इसी टाइम पर इस बुक में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एलिनेशन का। एलिनेशन डियर फ्रेंड लिटरली मीन्स ए सेंस ऑफ सेपरेशन। एलिनेशन मीन्स ए सेंस ऑफ सेपरेशन। मार्क्स कह रहे हैं कि देखिए, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, टूल्स, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, इससे ह्यूमन बीइंग का जो नेचर पर जो कंट्रोल है वो बढ़ता जाता है। ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंटली एडवांस होते रहते हैं, और जैसे जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स एंड टेक्निक एडवांस होंगे, आपका जो कंट्रोल है नेचर के ऊपर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नेचर के ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग का एलिनेशन भी बढ़ता जाएगा। और सिंस ये कंट्रोल नेचर के ऊपर कैपिटलिस्ट सोसाइटी इन विच मार्क्स वॉज लिविंग इट वॉज मैक्सिमम, सो एलिनेशन भी उस सोसाइटी में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसे, हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्क्स इज सेइंग कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री इज नथिंग, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, ह्यूमन हिस्ट्री इज नथिंग बट प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स टूल्स, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टेंटली ये क्या होते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। और जैसे जैसे ये इवॉल्व होते रहते हैं, आपका जो कंट्रोल है नेचर पर, नेचुरल फोर्सेस पर, ये बढ़ता रहता है। आप प्रोडक्शन को और मैक्सिमाइज करने के लिए नेचर पर और कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। कह रहे कि देखिए, एलिनेशन, एलिनेशन एक ऐसी सिचुएशन है कि जिस चीज को आपने क्रिएट किया है, वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड, सेम थिंग इट स्टार्ट अपेयरिंग यू एलियन, सेम थिंग स्टार्ट अपेयरिंग यू आउटसाइड क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, स्कूल, कॉलेज, आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखिए, छोटे बच्चों को बहुत हैप्पी नहीं है, सुबह सुबह अभी नींद में ही है, पेरेंट्स लेके जा रहे हैं। स्कूल्स, दैट इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। फॉर दैट चाइल्ड इट अपीयर्स एज इफ एन एलियन ऑब्जेक्ट, कि उन्हें स्कूल भेजा जा रहा है, स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। यू हैव क्रिएटेड स्कूल, यू हैव क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यू हैव क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, बट आपको लग रहा है कि मैरिज तो करनी ही पड़ेगी, सब मैरिज करते हैं। सो दैट इज क्रिएशन ऑफ यू, बट इट अपीयर समथिंग दैट इज आउटसाइड यू। आपने ही क्रिएट किया है, बट इट अपीयर्स व्हाट, समथिंग आउटसाइड यू। सो ये फैक्ट्री, ये कैपिटलिज्म, सब क्या है, ह्यूमन क्रिएशन है। यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं रिलीजन का। दोस्तों, रिलीजन किसने क्रिएट किया है? रिलीजन ने ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है या ह्यूमन बीइंग ने रिलीजन को क्रिएट किया है? पर आपको क्या लगता है? रिलीजन डिटर्मिन्स एवरीथिंग, कुछ गलत नहीं करते हैं, भगवान देख रहे होंगे, ठीक है, आपने ही भगवान को क्रिएट किया है, बट इट स्टार्ट अपीयरिंग यू एज एलियन ऑब्जेक्ट, एलियन ऑब्जेक्ट डियर फ्रेंड। और आपको लगता है कि रिलीजन आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा, ऐसा है नहीं, बट आप एलिनेटेड हो चुके हैं। इसलिए वो चीज जो आपने क्रिएट की है वो आपको आउटसाइड यू, बियॉन्ड यू, एक्सटर्नल टू यू अपीयर हो रही है। यहां पर उसका रिलीवेंस क्या है एलिनेशन का, मैं आपको बताता हूं। हमने आपके साथ डिस्कस किया
कि मैन इज अ प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग, क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग। और देखिए जब आप अपनी क्रिएटिविटी से कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं तो दैट गुड इज अ सिंबल ऑफ योर क्रिएटिविटी। कुछ भी आपने बनाया, आपने एक पेंटिंग ही बना दी, दैट पेंटिंग इज एक्चुअली सिंबल ऑफ योर क्रिएटिविटी। और जब आप उस पेंटिंग को देखते हैं, दूसरों को दिखाते हैं और लोग बोलते हैं कि वाह क्या पेंटिंग है, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलती है। हो सकता है उस पेंटिंग को मार्केट में सेल करके आपको कुछ वैल्यू भी मिल जाए, बट उसके नीचे आप अपना नाम लिख देते हैं, मनोज, ठीक है, मतलब आपको लगता है मनोज हैज क्रिएटेड दिस, यू आर द क्रिएटर, यू आर द इनोवेटर, यस और नो। मार्क्स का कहना है कि देखिए ये जो प्रोडक्टिव लेबर होता है ह्यूमन बीइंग का, ये बहुत वाइटल ह्यूमन एक्टिविटी है। इस प्रोडक्ट के थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को, आप अपने टैलेंट को, आप अपनी क्रिएटिविटी को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोडक्शन से आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी क्रिएटिविटी को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। बट अगर आपका लेबर का ये जो आउटकम है इसे कोई और कंट्रोल करने लगे और उसे कमोडिटी के फॉर्म में मार्केट में बेचने लगे और ये बिकेगा या नहीं बिकेगा इस बात से डिसाइड हो, लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड से, नाउ दैट ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन प्रोड्यूस थ्रू योर क्रिएटिव लेबर, नाउ इट अपीयर्स एलियन टू यू। अब ये आपको क्या हो जाएगा, एलियन हो जाएगा। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मार्क्स बोल रहे हैं, देखिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट है हर चीज को डिसाइड करता है किसके बेसिस पर, प्रॉफिट के बेसिस पर, कि कितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं क्या मैन्युफैक्चरिंग का मेथड होगा, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, कितने वेजेस दिए जाएंगे। देखिए आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारी क्रिएटिविटी उसमें इन्वॉल्व की है, बहुत सारा आपने माइंड यूज़ किया है, बट अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है तो उसके बहुत कम पैसे आपको दिए जाएंगे। सो नाउ योर क्रिएटिव आउटकम इट हैज़ बिकम मार्केट कमोडिटी। और इस प्रोसेस में मार्क्स बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जो वर्कर है ये एलिनेट हो जाएगा किससे, प्रोडक्ट से, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से और फेलो वर्कर से। देखिए सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन आई कैन एक्सप्लेन इन मच डिटेल, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बुक में जो मेंशन है उसे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इन योर सिलेबस एलिनेशन इज ऑल्सो मेंशन, देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एलिनेशन, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एज पर दिस बुक ऑफ हार्लुम्बर्स, जहां पर इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों। सो मार्क्स कर रहे हैं कि वंस फ्रॉम कैपिटलिस्ट स्टेज वी विल ट्रांसफॉर्म इनटू नेक्स्ट स्टेज दैट इज कम्युनिस्ट स्टेज। एट दिस स्टेज देयर विल बी नो कॉन्ट्राडिक्शन एंड देयर विल बी नो कन्फ्लिक्ट एंड दैट विल बी एंड ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। तो वंस कम्युनिज्म विल कम, एलिनेशन विल एंड, एलिनेशन एंड हो जाएगा दोस्तों। ये बता रहे हैं कि एक रेडिकल चेंज होगा किसमें, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंस्टीट्यूशन ऑफ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। कम्युनिज्म में क्या होगा, मॉडर्न कम्युनिज्म में कॉमन ऑनरशिप होगी किसकी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। तो जब कम्युनल ऑनरशिप होगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की तो सोसाइटी में कोई इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा और कोई चेंज भी नहीं होगा। दैट स्टेज विल बी द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये होगा कैसे, ये स्टेज आएगी कैसे, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक टूल वो यूज कर रहे हैं, मेथोडोलॉजिकल टूल, क्लास स्ट्रगल। सो क्लास स्ट्रगल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कौन, मार्क्स, यूजिंग क्लास स्ट्रगल। ये बता रहे हैं कि कैसे आप कैपिटलिज्म से किस में जाएंगे, कम्युनिज्म में। अब आप बोलेंगे क्लास क्या है, देखिए क्लास रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर समथिंग इन कॉमन। मार्क्स अकॉर्डिंग क्लास क्या है, क्लास अकॉर्डिंग टू मार्क्स रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर रिलेशनशिप विद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो सेम रिलेशनशिप शेयर करते हैं उन्हें बोला जा रहा है क्लास या सोशल ग्रुप। तो सोसाइटी में मार्क्स बोल रहे हैं बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, बट ब्रॉडली दो मेजर ग्रुप हैं। एक ग्रुप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है और एक ग्रुप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करता, बस अपने लेबर को ओन करता है, वो ऑफर करता है किसे, ऑनर को। इनके बीच का जो रिलेशन होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं और जो नॉन ऑनर हैं, दैट रिलेशनशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट। इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता अकॉर्डिंग टू मार्क्स कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट एंड सच क्लास कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू मेजर ग्रुप, दैट इज द बेसिस। ये जो क्लास कन्फ्लिक्ट है दैट इज द बेसिस ऑफ डायलेक्टिक ऑफ सोशल चेंज। जब सोसाइटी एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन में जा रही है, एक स्टेज ऑफ सोसाइटी से दूसरे स्टेज ऑफ सोसाइटी में जा रही है, तो किसके बेसिस पर जा रही है, एक मैकेनिज्म है क्लास स्ट्रगल या क्लास कन्फ्लिक्ट, इसके बेसिस पे जा रही है।
तो हिज फेमस स्टेटमेंट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये क्लास स्ट्रगल कैसे अनफोल्ड होता है ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। मार्क्स बोल रहे हैं कि देखिए प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्लासेस नहीं थी क्योंकि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे उस पर सबकी कॉमन ऑनरशिप थी। क्लासेस तभी इमर्ज होंगी जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर डिफरेंशियल रिलेशनशिप होगी। कुछ लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो ओन करेंगे दे विल बी नोन एज ऑनर और रूलिंग क्लास, जो ओन नहीं करेंगे दे विल बी नोन एज नॉन ऑनर और सब्जेक्ट क्लास। इस तरह से सोसाइटी में दो क्लासेस क्या होंगी, इमर्ज होंगी, और इनके बीच का जो रिलेशन है दोस्तों ये कैरेक्टराइज बाई कन्फ्लिक्ट। जो सब्जेक्ट क्लास है दे आर ऑफरिंग देयर लेबर पावर, दे आर ऑफरिंग लेबर पावर, बट इस लेबर से जो बेनिफिट आ रहा है उसे ओन कर रहे हैं कौन, ऑनरशिप क्लास। जब मास्टर एंड स्लेव थे एंशिएंट सोसाइटी में तो स्लेव वर डूइंग फिजिकल लेबर बट बेनिफिट वर डिराइव्ड बाई मास्टर्स। फ्यूडल सोसाइटी में लेबर वॉज डन बाई सर्फ बट प्रोड्यूस वॉज ओन बाई फ्यूडल लॉर्ड। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लेबर इज परफॉर्म बाई वर्किंग क्लास बट बेनिफिट डिराइव्ड बाई कैपिटलिस्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, एक कन्फ्लिक्ट इमर्ज हो रहा है क्योंकि एक ग्रुप बेनिफिट क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, उसे अप्रोप्रिएट कर रहा है। सो वन क्लास इज गेनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। सो ये जो रिलेशनशिप है दैट इज अनइक्वल रिलेशनशिप, एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप। बट ये चलता आता है, चलता इसलिए आता है क्योंकि एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्रिएट की जाती है किसके द्वारा, रूलिंग क्लास के द्वारा। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था द सोसाइटी इन विच मार्क्स वॉज लिविंग, दैट सोसाइटी इज कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यहाँ पर ये जो दो ग्रुप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रूलिंग एंड सब्जेक्ट क्लास, ऑनरशिप एंड नॉन ऑनरशिप क्लास, दैट इज बुर्जुआजी और कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटेरियत और वर्कर। बुर्जुआजी कंट्रोल कर रहे हैं फैक्ट्री को, मशीनरी को, प्रोलेटेरियत अपना लेबर ऑफर कर रहे हैं बुर्जुआजी को, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लॉइटेटिव है बट फॉल्स कॉन्शियसनेस बनी हुई है। बट एक स्टेज आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये मेंबर ऑफ प्रोलेटेरियत दे विल डेवलप रियल क्लास कॉन्शियसनेस। जब इनको समझ में आ जाएगा कि असली सिचुएशन क्या है, ट्रू सिचुएशन इज कैरेक्टराइज बाय देयर एक्सप्लॉइटेशन, उस समय डियर फ्रेंड ये जो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस कर रहा है सुपर स्ट्रक्चर। ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये लेजिटिमाइज कर रहा है किसे, इस एक्सप्लॉइटेशन को जो इकोनॉमिक बेस में हो रहा है। जैसे ही ये फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस रिप्लेस हो जाएगी एक क्लास स्ट्रगल होगा, एंड दैट क्लास स्ट्रगल आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लास स्ट्रगल अनफोल्ड होगा। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को हम 2 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, दैट आई डिस्कस विथ यू पीपल अर्लियर ऑल्सो। और दोस्तों अगर आप 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बहुत ही ईजी तरीके से समझना चाहते हैं तो वी एट एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च आवर नेक्स्ट बैच फ्रॉम 5th of June डियर फ्रेंड। इसको लेकर अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कोई भी क्वेरीज है उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।